Hi kids, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So we have successfully completed our first chapter, right? And I hope आप सभी ने सारी questions complete किए हैं, उसको अच्छे से understand किया है, right? Now let's start chapter number 2. That means आज हम पढ़ने वाले हैं motion and measurement of distances. इतना बड़ा सा है, हम इसे बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? So this is the lecture 1 and today we are going to discuss transportation and measurement, ठीक है? तो ये हम discuss करने वाले हैं. So definitely हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? We are preparing for the school examinations as well as for the Olympiads. That means you are getting knowledge from the basic to the very much high level for the Olympiad, right? Now see, इस पूरे टीम अप जो हम लोगों ने किया है, so this team will be helping you in getting all the targets completed, right? So we will be preparing for both school examinations as well as the Olympiads level examinations, right? If you want any DPP or study material, you can definitely access them through our Telegram channel. Let me show you the all right. So this is the Telegram चैनल. यू कैन सी हियर. आप लोग को पहले तो पता ही है कि हम लोगों ने क्या किया है, टेलीग्राम चैनल बनाए हैं क्लासेस के अकॉर्डिंग, राइट? आप लोग क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ऐप पे जाएंगे और उस पर TTB06 लिखेंगे. जैसे आप वहाँ लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का हमारा चैनल दिखेगा क्लास 6 का, ठीक है? तो आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको DPPs और स्टडी मटेरियल बिल्कुल अवेलेबल होंगी, राइट? सो यू कैन ज्वाइन इट एंड एक्सेस इट. नाउ लेट्स मूव to the important thing I wanted to tell you that look, you have to go on this website www.talkingtextbooks.in. वहाँ पर जाने के बाद you will be getting packages. What type of packages? Such packages will be available there for different classes. आप अपनी classes का choose करेंगे, right? Now see, आपको इस package में क्या क्या मिल रहा है? This package is for the foundation and Olympiad level. That means you will be studying from the basic to the Olympiad level, right? Now see, you will be getting comprehensive study material, recorded and live classes, homework submission feature, bi-weekly quizzes and periodic test papers. Now you can definitely say bhai ki bhai comprehensive study material is important because definitely you want to just go from the a very much organized study material. जहाँ से भी तुम starting करना चाहते हो prepare करने के लिए, you have to be very much organized, right? कि भाई क्या पढ़ना है, कितना level का पढ़ना है, कितना deeply पढ़ना है. All such thing will be cleared if you go through with this study material, right? And the next thing is recorded and live classes. Recording is for what? If you have any doubt about any topic जो कि पहले की छूट चुका है, if you want to do that, you can go back on that. Recorded videos वहाँ पे available होंगे, so you can study from there, right? Homework submission feature, ताकि आप लोग homework करें, आप लोग homework submit करें. That's why homework submission feature is involved, right? And then bi-weekly quizzes is important. If you are attending a lecture, you should know कि भाई आप lecture में कितना पढ़े, कितना नहीं पढ़े, कौन सा topic clear हुआ, कौन सा topic clear नहीं हुआ. You should remember that, right? Periodic test papers of the same pattern is important because that would be like how much level of the competitive you are feeling. कितना ज़्यादा दैट मीन्स कितने डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर कितना हाई लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर कितने सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाउ मच क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम, हाउ यू शुड डील विद ऑल द क्वेश्चंस. ये सब क्लियर होगा आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से. तो इट विल गिव यू अ टेस्ट ऑफ द एक्चुअल एग्जामिनेशंस जो कि आते हैं, राइट? सो यू हैव टू क्लिक ऑन बाय नाउ सो दैट यू विल बी एक्सेसिंग ऑल दीज फीचर्स in a package. You have to click on buy now, then you will be forwarded on this page. Now you can see here the cost is 9,000, but you write here CYLIVE. If you write here CY live, then 30% will be discounted, 30% will be deducted from the 9,000 and the cost will becomes of 6,300 only, right? Now you have to click on buy package. You will be forwarded on all the options available here. You can choose any option if you want, right? Now see, if you have any query, you can definitely call us on this number. We will be resolving your query. That whatever your query will be, that should be definitely related to the packages and the all the processes, like so. This is important. Now let's move on to the real chapter. Now see, you have to be prepared because this is the lecture 2 when we are stepping into the physics zone, right? अब तक तो हम मैथमेटिकल जोन में थे. Now let's move to the physics zone. वैसे आज के लेक्चर में पढ़ने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आप फिजिक्स जोन में हैं. हम लोग थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत कहानी सुनेंगे, and that's it.
आज के लेक्चर में हम लोग यही करने वाले हैं। वी विल बी स्टडिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट, राइट। चलिए अब फटाफट से अपनी बुक्स वगैरह निकाल लीजिए, अपनी कॉपी वगैरह निकाल लीजिए, फटाफट से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी प्रिपेयरिंग नोट्स एंड देन यू विल बी डेफिनेटली रिवाइजिंग द थिंग्स, ठीक है। अभी तक चैप्टर 1 फिनिश हुआ है, दिस इज द स्टार्टिंग। आप उसको बार बार रिवाइज करो चैप्टर 1 को, ताकि आप उसमें मास्टर कर सको, ठीक है। तभी तो मजा आएगा आगे फिजिक्स पढ़ने में, जब आप उसको मास्टर करोगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। लाइक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। इधर तुम जा रहे हो, या फिर तुम्हारा सामान जा रहा है, या फिर कोई कुछ भी लेकर जा रहा है, आपको जाना है, ठीक है। एक जगह से अपना पोजीशन चेंज करना है, ठीक है। आपको मूव करना है, तो दैट वुड बी द ट्रांसपोर्टेशन। लेट्स से कि भाई आप समर हॉलीडेज में डेफिनेटली घूमने तो जाते ही होंगे, सभी घूमने जाते हैं। लेट्स से यू आर गोइंग समवेयर, लेट्स से फ्रॉम महाराष्ट्र टू दी जम्मू एंड कश्मीर, यू आर गोइंग देयर, राइट। तो आप जाएंगे, और आप जाएंगे कैसे? यूजिंग डिफरेंट मीन्स, लाइक आप बस यूज कर सकते हैं, आप ट्रेन यूज कर सकते हैं, आप खुद की कार से जा सकते हैं, राइट। सो यू विल बी यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स, बट व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, यू आर मेकिंग योर सेल्फ चेंजिंग योर पोजिशन। जैसे आप मूव करने की कोशिश करें, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बाय एनी मीन्स, ठीक है। और साथ में आपका सामान भी तो जा रहा होगा, राइट। तो ये तो चीज हुई भाई आपका ट्रांसपोर्टेशन, आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। बट जैसे मानो कि आपने किया है खाना ऑर्डर, ठीक है, खाना ऑर्डर किया है, तो अब वो जहां बनता है खाना, ठीक है, वो वहां से आएगा, आपके घर तक आएगा, यू विल बी ओपनिंग द डोर एंड देन यू विल बी गेटिंग द थिंग। तो अब वहां से आपका खाना ट्रांसपोर्ट हुआ है, आपके खाने ने ट्रांसपोर्ट किया है, राइट। तो दैट वुड बी लाइक कि जब कभी भी हम लोग या तो कोई भी सामान उसको पोजीशन चेंज करवाएं, उसको एक जगह से दूसरी जगह भिजवाएं, ठीक है, किसी और दूसरी जगह से अपने घर पे मंगवाएं, या फिर हम कहीं दूसरी जगह जाएं, या फिर दूसरी जगह से यहाँ आए। ऑल द प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग, मूविंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे गुड्स का मतलब है सामान, ठीक है। तो या तो पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, ट्रैवल करे, या फिर सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई क्यों है, कैसे है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो हम फटाफट से उसके बारे में बातें करते हैं। एंड सी, जब बहुत पुराना जमाना था, मतलब जब नया नया इंसान धरती पे आया था, ठीक है, मुझे नहीं पता वो कैसे आया, क्यों आया, बट लेट्स से जब वो आया था उसके पास कुछ नहीं था, राइट। तो उस वक्त कुछ नहीं था, तो उसके पास सामान तो कम ही रहता था। सामान के नाम पे क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, राइट। तो सामान तो कम रहता था। तो जब उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, क्या करते थे? सीधे सीधे पैदल चलो, और कुछ तो सामान है नहीं और कुछ तो चीजें हैं नहीं, तो सीधे सीधे पैदल चलो। तो वो क्या करते थे, जब बहुत स्टार्टिंग के अंदर, जब बिल्कुल ही स्टार्टिंग हुई थी, तो दे वॉक एंड दे रीच टू देयर डेस्टिनेशन। को जहां जाना होता था दे डू बाय वॉक। फिर धीरे धीरे उनके पास क्या हुआ, सामान बढ़ने लगा। नाउ अब सामान बढ़ने लगा तो क्या हुआ, जैसे ही सामान बढ़ेगा तो या तो कंधों पे लेके जाओ, ओनली ऑप्शन भाई, कंधों पे उठा लो और सीधे चलो। बट जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाए, कि जब कंधों पर भी नहीं आए, तो दे स्टार्टेड टू ड्रैग देयर गुड्स, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या करने लगे, उनको ड्रैग करके लेके जाने पड़े। बट ड्रैग करने में भी प्रॉब्लम थी, पता है क्या, कि सामान बहुत नीचे से घिस जाते थे। क्या करें, अब घिस गए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। नाउ सी हियर, अराउंड 5000 BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, जब मतलब जो जीसस क्रिस्ट है वो बॉर्न नहीं हुए थे। सो बिफोर दैट मीन्स इट वुड बी लाइक उनके जन्म के भी 5000 साल पहले, ठीक है। पीपल यूज टू ट्रैवल ऑन फुट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दे वॉक, ठीक है। दे इवन कैरी देयर गुड्स ऑन देयर बैग्स, जो अपना सारा सामान था, जो भी जैसा भी सामान था, जितना भी सामान था, दे कैरी ऑन देयर बैग्स, राइट। जैसे कि आप स्कूल बैग लेकर जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वो भी अपना सामान को लेकर जाते थे। बट उनके पास स्कूल बैग्स नहीं होते थे, तो वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखते थे। देन दे स्टार्टेड टू ड्रैग देयर लोड्स अलोंग द ग्राउंड, और जब वो बहुत हैवी होने लगा कि भाई उनसे नहीं चला जाएगा, तो वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू ड्रैग दैट ऑन द ग्राउंड। अब जब वो ड्रैग करते थे,
तो उस वक्त पे क्या हुआ कि उनका सामान घिस जाता था। अब क्या करें, कोई ना कोई प्रोसेस तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी, उसको उन्होंने क्लिक करने के लिए क्या किया, दे मेक दीज टाइप्स ऑफ स्लेजेस। ठीक है, उन्होंने इस तरीके के स्लेजेस बनाए। अब क्या करते थे वो, सारा सामान इन स्लेजेस पे रख दो और इसको घसीटो। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, घसीट घसीट के लेके जाएंगे। इससे क्या इजी होगा, इससे इजी ये होगा कि उनको हल्का सा फोर्स कम लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनका सारा सामान तो यहाँ है और जो भी चीज नीचे घिसेगी उनका सामान तो नहीं होगा, ये घिसेगा लाइक, तो फिर ये बहुत ही बेनिफिशियल उस वक्त उनके लिए था। ठीक है, सी हियर, ग्रेजुअली दे लर्न्ड टू मेक स्लेजेस फ्रॉम लॉग्स, poles, rawhide, etc. to enable them to transport their load. खुद के जो सामान है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए they used it. अब धीरे धीरे भाई देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उनके पास क्या मिले, एनिमल्स उनको मिले, राइट। कुछ एनिमल्स उन्होंने अपने बहुत ही डोमेस्टिक बना लिए, राइट, एंड दे यूज दैम, और उनके ऊपर अपना सामान रखते थे, एंड देन दे वॉक, ताकि जो एनिमल्स है वो अपना उनका सामान ले चले और वो खुद से वॉक करे, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एनिमल्स का यूज करना शुरू किया। ठीक है, लेटर ऑन पीपल बिगिन टू यूज द एनिमल्स टू हॉल देयर लोड्स एंड ट्रेवलिंग। नाउ ये तो थी कहानी किसकी, लैंड की। लैंड पे उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, बट व्हाट अबाउट द वाटर, वाटर में क्या किया। नाउ लेट्स सी, उन्होंने वाटर में क्या किया, धीरे धीरे सोचा, जब उन्होंने देखा कि भाई जो वुड है वो पानी के ऊपर तैरती है, तैरती मीन्स वो फ्लोट होती है, तो उन्होंने ये चीज देखी तो सोची कि अगर हम बहुत सारे वुड को ज्वाइन कर देंगे, पूरा अच्छे से बेड टाइप बना देंगे और फिर उसके ऊपर ट्रैवल करेंगे तो क्या पता हम भी ट्रैवल कर लें। सो दे डू ट्रैवल, दे वर्क ऑन एंड ऑन। तो उससे क्या होगा ना, उसके बाद ये पानी के ऊपर तैरने लगेंगे सारे के सारे, तो इट वुड बी सो मच ईजी, right? While doing so, they started to build wooden rafts from logs, reeds to transport goods across the water. So they did it. ठीक है, तो it would so much easy. They can even cross the river, right? They can cross the lakes. They can cross all the water channels. तो it was easy. Land पे उन्होंने क्या करना शुरू किया भाई, animals को use करना शुरू किया, and जो water है उसके ऊपर उन्होंने इस तरीके से बनाना शुरू किया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे they observed the shape of a fish. उन्होंने क्या किया, सारे की सारी जो फिशेस है उनका शेप ऑब्जर्व किया कि भाई कैसा होता है उनका, हम हर किसी का स्पेसिफिक शेप था, लाइक उनका आगे से मुंह बहुत ही स्ट्रीमलाइन था। ठीक है, दे ऑब्जर्व्ड, और इसी को ऑब्जर्व करके उन्होंने कुछ नया इन्वेंट किया। देखेंगे यहाँ पे, एज टाइम वेंट बाय दे लर्न टू बिल्ड कैनोज विच कुड बी पैडल्ड बाय हैंड और विद पोल्स विच अल्टीमेटली लेड टू द मेकिंग ऑफ बोट्स। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह ऑब्जर्वेशन किया आसपास का चारों तरफ, व्हाट इज हैपनिंग इन द नेचर, हाउ दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, एंड दे स्टार्टेड टू मेक सच टाइप ऑफ थिंग्स। इसके बाद धीरे धीरे इनका जो शेप है, इस शेप से इनको लगा कि हम और अच्छी तेज स्पीड में जा सकते हैं, एंड दे डिड मोर इनोवेशन इन दैट, एंड दे मेक द बोट्स। ठीक है, धीरे 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 बोट्स बनी, तो और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से वो लोगों ने अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है स्टार्ट किया। उसके बाद जब ऐसा हुआ तो किसी ने दिमाग लगाया कि भैया अगर व्हील्स अगर कुछ हो जाए, मिल जाए, तो जैसे व्हील्स को क्रिएट कर ले कोई, है ना, तो फिर अपना सामान को और भी इजी हो जाएगा, तो उसके बाद हम और भी जल्दी जल्दी दूसरी जगहों पर जा पाएंगे। सो दे यूज्ड वेगन्स। वेगन्स को जो एनिमल्स थे वो लेके जाते थे। वेगन्स मीन्स व्हील पर एक छोटा सा स्पेस जिसके ऊपर वो बैठ सके, एंड जो कि एनिमल्स हैं वो उसको लेकर जा सके, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वेगन्स हैं, ये सारे के सारे वेगन्स आपको हेल्प कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। सो दीज वर बेनिफिशियल। और इसी तरीके से वाटर पे फिर याचेस बनी, ठीक है, शिप्स बने, और भी तरीके के वेसल्स बने जो कि पानी के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सके, ठीक है, लैंड पर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सके। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। आज जो हम बसेस, साइकिल, कार्स वगैरह देख रहे हैं ना, वो स्टार्टिंग से नहीं थे। स्टार्टिंग में बहुत बेसिक था यार, बहुत बेसिक, हम लोग वॉक करते थे सिंपल, बट विद द इनोवेशन, विद द स्मार्टनेस, जो ब्रेन्स हैं, इतने अमेजिंग ब्रेन्स हैं पीपल के, उनकी हेल्प से हम लोगों ने ये आज का वर्ल्ड क्रिएट किया है, राइट। सो आज का जो ट्रांसपोर्टेशन है जो कि हम देखते हैं ऑलरेडी, वो कहाँ से आए हैं, बाय वॉकिंग, वो वहां से आए हैं, राइट। पहले तो कुछ भी नहीं था। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, कि हम आज तक के ट्रांसपोर्टेशन से कैसे
पहुंचे हैं, ठीक है, वहां तक कैसे आए हैं। और आजकल भी बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, लाइक यू कैन सी बहुत अमेजिंग अमेजिंग कार्स हैं, बुलेट ट्रेन्स है, बिल्कुल बहुत तेज स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, राइट। साइकिल है, ठीक है, साइकिल तो ज्यादा तेज नहीं लेकर जा सकती बट स्टिल हमको कहीं तो लेकर जा सकती है, वी कैन प्ले अराउंड, ठीक है। और फिर बसेस हैं जो हमको एक सिटी से दूसरी सिटीज में और भी वाइड प्लेसेस तक लेकर जाती हैं। तो द थिंग इज देयर आर सो मच इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एवरी सिंगल टाइम। आप स्पेस में देखो, स्पेस में हम लोग कितना दूर दूर तक जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू अनदर प्लैनेट्स, टू द मून, टू द सन। डेफिनेटली यार बहुत सारी ऐसे सैटेलाइट्स है जो सन तक जाने की कोशिश कर रही हैं, राइट। वी आर डूइंग इट, राइट। इनोवेशंस हो रहे हैं अभी भी, लाइक अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो वाटर के मीन्स हैं वो क्या क्या है। यू कैन डेफिनेटली सी, देखेंगे ये जो है ना, ये मोटर बोट है, ठीक है, तो ये आपको सिर्फ एंजॉय करने में हेल्प करती है, ठीक है। आप जाएंगे, थोड़ी देर चलाएंगे, एंजॉय करेंगे एंड देन यू कम बैक, ठीक है। दिस इज नोन एज दी होवरक्राफ्ट, ठीक है। ये जो होवरक्राफ्ट होता है ना, ये पानी पे भी चल सकता है और ये लैंड पे भी चल सकता है, तो दिस इज गुड, दिस इज अ गुड इनोवेशन, दिस इज कॉल्ड होवरक्राफ्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बोट, बोट तो सब जानते ही होंगे, दिस इज द बेसिक वन, ठीक है। दिस इज सबमरीन। सबमरीन क्या होता है? डू यू नो दैट सबमरीन? सबमरीन इज एक्चुअली यू कैन से अ व्हीकल, है ना, और ये पानी के अंदर चलता है, ये पानी के ऊपर नहीं चलता है। एंड दिस इज अ व्हीकल जिसके अंदर लोग होते हैं। जनरली यूज होता है हमारे बॉर्डर्स पे, वाटर बॉर्डर्स है ना, उनके ऊपर निगाह रखने के लिए ये यूज होता है। दैट मीन्स दिस इज यूज्ड बाय द आर्मीज जनरली, ठीक है। तो सबमरीज यूज होती हैं एंड डेफिनेटली ये हेल्प करती है हमको हमारे दुश्मनों से रक्षा करने के लिए, ठीक है, जो सबमरीन्स होती हैं। और देखेंगे मॉडर्न टाइप की शिप, मॉडर्न टाइप की शिप, तो हम ट्रैवल कर सकते हैं वाटर्स के थ्रू फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। एंड तो ये इतनी सारी चीजें, इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एयर का ट्रांसपोर्टेशन। एयर में कैसे करते हैं? यू कैन सी हियर एरोप्लेन, है ना, ये बहुत ही कम टाइम लेता है, एरोप्लेन से तो हम बहुत ही कम टाइम लेते हैं, बहुत जल्दी जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाते हैं। यू कैन सी द हॉट बलून, ये भी ऐसा ही होता है, पर ये ट्रैवलिंग करने में काम नहीं होता, ये तो सिर्फ जस्ट फॉर फन, यू कैन गो देयर, ठीक है, यू कैन मेक फन, हैव सम गुड टाइमिंग, दैट्स इट। हेलीकॉप्टर भी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, ये ऐसे। डेफिनेटली रॉकेट तो आपको जो अर्थ है उससे बाहर लेकर जा सकता है, राइट। इट कैन टेक इट टू यू द मून। So there are so much innovations, so much means of transportation in the air, on the water, on the land. Definitely these are the innovation, you can say, definitely. तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से करी? By just walking, listen, वहाँ से हम बिल्कुल innovation करते चले गए and now you can see the space around you. देखो अपने चारों तरफ कितना innovations है यार, कितना मतलब you can see so much brilliant minds have worked the way through the problems, right? तो ये जो भी था ना, ये प्रॉब्लम्स थी और हम लोगों ने उनको बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगा के बिल्कुल इनोवेशन करके एंड दे क्रिएटेड समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर, राइट? So this is all about the things. Now let's talk about the measurement. Why talk about the measurement? Because आप देखेंगे कि transportation is all about measurement. How? Let's say that you walk from one city to the another. So you have to calculate कि भाई कितना टाइम लगेगा आपको सिटी तक पहुंचने के लिए, कितना डिस्टेंस है उस सिटी तक पहुंचने के लिए, राइट? ताकि आप अपने काम को अच्छे से अरेंज कर सके। लेट्स से आप घूमने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं शाम को पहुंचूंगा तो फिर क्या होगा, शाम को पहुंचने के बाद हम बस सेटल हो जाएंगे और सो जाएंगे, फिर मॉर्निंग में हम यहाँ घूमने जाएंगे। वी डू प्लान ऑल सच थिंग्स, राइट? तो वो प्लानिंग करने के लिए यू शुड नो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज जहां आप जाना चाहते हैं, राइट? एंड यू शुड नो द टाइमिंग कि आपको कितना टाइम लगेगा। लेट्स से 2 आवर्स ही लग रहे हैं तो आप सोचो कि वहां पर पहुंचने पहले ही ना, सबसे पहले हम लोग खाना खाएंगे और एक जगह घूमने जाएंगे, लेट्स से यहाँ घूमने जाएंगे। तो यू डू प्लान और फॉर दैट प्लानिंग यू नीड सम काइंड ऑफ मेजरमेंट, राइट? एंड अब हर वक्त मेजरमेंट करते हैं। आई एम टेकिंग यू टू द एग्जाम्पल्स कि हम कहाँ करते हैं। लेट्स से आप जैसे वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, तो जब आप वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं यू ऑलवेज डू दैट मेजरिंग होता है, बिकॉज जो शॉपकीपर है उसके पास बहुत सारे लेट्स से टमाटोज हैं, अब उसके पास बहुत सारे टोमेटोज हैं। अब
उन टोमेटोज में से आपको चाहिए ओनली 1 kg, तो वो क्या करेगा, उनको उठाएगा, मेजर करेगा, बीम बैलेंस से मेजर करेगा, व्हेन इट बिकम 1 kg ही गिव इट टू यू, राइट। इस तरीके से कोई दूसरा आया, लेट्स से उसको 2 kg चाहिए, वो इतने सारे टोमेटोज में से टोमेटोज उठाएगा, 2 kg मेजर करेगा एंड दैट मेजर करने के बाद वो उसको देगा। दिस इज द मेजरमेंट, राइट। वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, मेजर कर रहा है, बिकॉज ही हैव टू गिव ओनली 2 kg टू द अनदर पर्सन, है ना। तो ये डेफिनेटली दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ द मेजरमेंट। नाउ सी मेजरिंग क्लोथ्स। अब आप कुछ सोचो, जब आप कपड़े लेने जाते हो, अरे ये तो छोटा है, अरे ये तो बड़ा है, यू ऑलवेज से दैट, है ना। तो आपकी साइज का कपड़ा लेने के लिए डेफिनेटली मेजरमेंट तो चाहिए कि मेरे को फिट आना चाहिए, मेरे को अच्छे कपड़े आने चाहिए, राइट। तो दैट द थिंग कि आप जब कभी भी बनाया जाता है कोई भी क्लोथ, तो वो एक साइज का बनाया जाता है, एक मेजरमेंट लेके बनाया जाता है, राइट। एंड डेफिनेटली इससे आपको हेल्प मिलती है कि आप बिल्कुल स्मार्ट लगो। क्यों, मेजरमेंट से तो तभी पता चलेगा ना कि आपको बिल्कुल अच्छा साइज आ रहा है, ठीक है। और देखेंगे कि भाई जब हम स्केल से मेजर कर रहे होते हैं, you can definitely do that. Now see, this is a measurement using scale on a map. वहां पे क्या हो रहा होता है, जब आप मैप की बात कर रहे होते हो, तो मैप पे आपको जो आप खुद सोचो, अगर रियलिटी में मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंसेस का अगर मैप बनाया जाए तो आप क्या करोगे, आपको कितना बड़ा पेपर चाहिए होगा, बिकॉज अर्थ इज सो बिग, तो इतना बड़ा पेपर अवेलेबल तो नहीं होगा। सो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम लोग एक स्केल डिसाइड करते हैं। स्केल का मतलब क्या हुआ कि भाई हम लोग डिसाइड करते हैं, लेट्स से कि 1 किलोमीटर, अर्थ का एक्चुअल 1 किलोमीटर हम लोग 1 सेंटीमीटर से शो करेंगे, ठीक है। किससे, स्केल पे। वो जो मैप हम बनाएंगे ना, उस पे अगर 1 सेंटीमीटर लाइन खींची है तो इसका मतलब एक्चुअल में वो 1 किलोमीटर है। तो ये पूरा स्केल लेके हम लोग मैप्स डिजाइन करते हैं। तो अगर आप स्केल से मैप के ऊपर 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंसेस मेजर करोगे ना, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हो एक्चुअल डिस्टेंसेस में कि भाई एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। वैसे तो आप सीधे सीधे आजकल के जमाने में गूगल कर लोगे, बट ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। मैप से भी आपको लड़ना आना चाहिए, ठीक है। इट वुड बी वेरी नाइस फॉर यू टू डू दैट, ठीक है। चलिए अब कुछ और चीजें देखते हैं, लाइक स्टॉप वॉच को यूज करना, तो आप टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं यूजिंग द स्टॉप वॉच, ठीक है। नाउ सी यू कैन डू दैट, व्हाई, हाउ यू कैन डू दैट कि भाई टाइम मेजरमेंट, लेट्स से यू आर गोइंग टू यू आर गेटिंग रेडी फॉर द रनिंग। तो जब आप रनिंग के लिए गेटिंग रेडी होते हो, तो आपको क्या करते हो, आपका जो कोच है वो टाइम स्टार्ट कर देता है, फिर आप देखते हो अपने 1 मीटर रेस को कितने टाइम में कवर अप किया, फिर नेक्स्ट टाइम वो और भी कम टाइम जो है डिक्रीज करते चलते कि आपको और फास्ट होना है, और फास्ट होना है। तो हम टाइम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी किससे, स्टॉप वॉच से। स्टॉप वॉच की जगह पे डेफिनेटली हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, वॉच का भी कर सकते हैं, ठीक है, टाइमर का भी यूज कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी मेजर टाइम जब कभी भी नीडेड होता है। नाउ सी, आप मेजरिंग कप से भी मेजरिंग कोई भी लिक्विड मेजर कर सकते हो। मेजरिंग कप से यू कैन डेफिनेटली डू दैट। जैसे आपको मतलब स्पेसिफिक, जैसे आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको 30 ml मेडिसिन लेनी है, यू कैन डू दैट। आप 30 ml मेडिसिन लेने के लिए आप क्या करोगे, सिलेंड्रिकल जो आपका कंटेनर है वो लोगे, जिसके ऊपर ग्रेजुएशन है, फिर फिक्स्ड 30 ml की दवाई उसमें डालोगे एंड देन यू विल बी टेकिंग इट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कभी कभी देखा है कि जो मिल्क मैन होता है, जो दूध देने आता है, तो वो क्या करता है, उसके पास एक स्पेसिफिक कंटेनर होता है जिसका अलग ही हैंडल होता है, वो उसमें से भर के आपको देता है, बिकॉज दैट वन इज स्पेसिफिक फॉर हिम कि दैट इट कंटेन्स 1 लीटर ऑफ द मिल्क, सो इट इज स्पेसिफिक फॉर हिम, ही यूज टू मेजर, ठीक है। तभी वो आपको 1 लीटर 2 लीटर इस तरीके से दूध देता है, राइट। नाउ डेफिनेटली यू कैन सी हियर, जैसे स्पून, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई 2 स्पून ऑफ दिस मेडिसिन यू हैव टू टेक। स्पून, तो आप क्या करते हैं, स्पून लेकर आते हैं, स्पून से मेजर करते हैं एंड डू नेक्स्ट, फटाफट ड्रिंक कर लेते हैं, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन डू एनीथिंग। नाउ सी, दिस इज द टेम्परेचर जो कि नापा जा रहा है, किसे, थर्मोमीटर से नापा जा रहा है। यू कैन डेफिनेटली सी दैट। देखेंगे जब कभी भी हम बीमार हो जाते हैं ना, तो वी डू यूज थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। तो हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो इट मीन्स वी आर मेजरिंग एवरी सिंगल टाइम, लाइक वी आर मेजरिंग ऑफ मोस्ट ऑफ आवर टाइम। बहुत जरूरी होता है मेजरमेंट, ताकि हम अपनी चीजों को स्पेसिफिक कर सके, राइट। क्योंकि अगर हमारा टेम्परेचर हमें पता होगा, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि भाई हम बीमार है कि नहीं बीमार है, हमें कुछ दवाई ववाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। हालांकि हमको भी पता चल जाता है कि भाई एनर्जी नहीं रहती है, सर दर्द होता है, ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, दिस इज द बेसिक वन। तो दैट वुड क्रिएट अस, हमको जो मैस क्रिएट होगा उससे बचाने में बिल्कुल हेल्प करेगा ये मेजरमेंट, ठीक है।
तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अभी हमने मेजरमेंट देखा, पर हम मेजरमेंट किसका करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। किसका मेजरमेंट करते हैं? हम टाइम मेजरमेंट करते हैं, राइट? हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, राइट? हम लोग वॉल्यूम मेजर करते हैं, राइट? हम लोग लेट्स से मास मेजर करते हैं। सो वी डू मेजर सम थिंग्स एंड दोज थिंग्स आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज, right? Those quantities which can be measured physically with the help of instruments are called physical quantities. Instrument की help से जो हम quantities को measure कर सकते हैं, those are called the physical quantities. Alright, now you can see here the example of length. Yes, we can measure length using the ruler, a scale. Right, you can measure length. Next is mass. You can do it by the help of such types of iron pieces which are very much labeled. ठीक है, एंड यू कैन मेजर टाइम यूजिंग दी वॉच, राइट? यू कैन डू दैट। एरिया, यू कैन मेजर एरिया यूजिंग अ स्केल, यू कैन मेजर टेम्परेचर यूजिंग अ थर्मोमीटर। सो दैट मीन्स टेम्परेचर, लेंथ, area, time, mass, what are these? These are the physical quantities because these can be measured using some instrument. Do you get it? So that's called the physical quantity. Now see, let's talk about the measurement. What it is measurement. Now first note it down. Now then I'll be telling you what it is. Now see, what is a measurement actually? Measurement is like comparison of two things. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जब आप लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप वहाँ गए एंड यू आस्क्ड अबाउट 2 kg पोटैटोज, ठीक है, तो जो शॉपकीपर होगा उसके पास बहुत सारे पोटैटोज होंगे, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो 2 kg का एक आयरन का पीस होगा उसके पास, फटाफट से उसको बीम बैलेंस के एक साइड पे रख देगा। दूसरी साइड पे वो क्या रखेगा, दूसरी साइड पे बहुत सारे पोटैटो थे उन सबको उठा के उसमें से पोटैटो रखेगा एंड देन ही विल मेजर। अगर बैलेंस आउट हो गए तो वो आपको दे देगा, अगर बैलेंस आउट नहीं होते हैं तो वो क्या करेगा, और पोटैटो रखेगा, नहीं तो फिर कुछ पोटैटो निकाल लेगा, फिर मेजर करेगा, बराबर बराबर आने चाहिए। When he will measuring it, balancing it, then he will give you and then he will say these are the 2 kg potatoes, ठीक है। तो ये जो थिंग था, ये जो पूरा प्रोसेस था, this is called measurement. Why? By balancing it, that is why this is called the measurement, right? तो आपको important यहाँ पर क्या है, measuring is the important, comparing is the important. Do you get it? Comparison is the important. That means good. अब आपको समझ में भी आएगा। The comparison of an unknown quantity with some known quantity is called measurement. ठीक है, let's say आपने क्या बोला, let's say आपको एक क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड आपके पास बहुत ही बड़ा पेपर का शीट है, बहुत बड़ा पेपर शीट है आपके पास, ठीक है। Now what you do, आपको अगर एक let's say 15 सेंटीमीटर का आपको स्क्वायर चाहिए, आपके पास एक बहुत बड़ी शीट है और आपको उसमें से लेना है 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। व्हाट यू विल डू, यू विल यूज योर स्केल, ठीक है, फिर आप उसको रखेंगे, आप लाइन खींचेंगे 15 सेंटीमीटर तक, फिर दोबारा रखेंगे, आप दूसरी लाइन खींचेंगे, यू विल मेक अ स्क्वायर ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड देन यू विल कट इट आउट विद अ सीजर। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपके पास एक अननोन मेजरमेंट का पेपर था एंड यू डू मेजर इट बाय कंपेयरिंग इट विद द स्केल दैट दिस इज द 15 सेंटीमीटर, यू यूज योर स्केल टू पुल अ लाइन एंड यू यूज टू कट इट विद अ सीजर। तो क्या होगा, वहां पर आप मेजर कर रहे होंगे, आप एक अननोन अमाउंट के पेपर में से आपने 15 सेंटीमीटर का जो पेपर है उसको निकाला है, उसको कट आउट किया है, उसको दिया है। Do you get it? That's how you will be doing it. ठीक है, आप क्या करते हैं, आप अननोन अमाउंट में से किसी नोन अमाउंट को कंपेयर करके फिर आप उसको नोन बनाते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड चीज है उससे कंपेयर करके आप उसको नोन बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पूरे लाइफ टाइम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। अब जो फिक्स्ड क्वांटिटी है दैट्स कॉल्ड अ यूनिट। फॉर एग्जांपल 1 kg अमाउंट इज फिक्स्ड फॉर एवरीवन। जितना आपको 1 kg अमाउंट मिलेगा दूसरे को भी उतना ही 1 kg अमाउंट मिलेगा। लेट्स से यू वॉक, लेट्स से कि भाई आप केक लेने गए, ठीक है, एंड आप केक लेने गए तो आपने बोला कि मुझे 1 kg वाला केक चाहिए,
ठीक है, वैसे तो केक पाउंड्स में आता है, बट ठीक है, लेट्स से आपको 1 kg वाला केक चाहिए, तो आप 1 kg वाले केक को अगर लेंगे, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपको 1 kg का ही केक देगा। अब अगर आपका फ्रेंड भी वहां पर केक लेने पहुंच गया और वो भी बोला मुझे भी 1 kg का चाहिए, तो वो उसको लिए भी 1 kg का केक देगा। पर आप मुझे क्या बताओगे, क्या आपके फ्रेंड के लिए 1 kg अमाउंट कम हो जाएगा? नहीं ना, बराबर रहेगा ना। 1 kg इज सेम फॉर एवरीवन, जितना तुम्हारे लिए 1 kg है दूसरे के लिए भी 1 kg सेम अमाउंट होगा। तो दैट इज द फिक्स्ड अमाउंट कि भाई वो कितना होता है। 1 kg इज फिक्स्ड, जैसे 1 hour फॉर यू इज फिक्स्ड, आपके फ्रेंड के लिए भी 1 hour वुड बी द सेम, आपके दूसरे फ्रेंड के लिए भी 1 hour वुड बी द सेम एज इट इज फॉर यू, ठीक है। तो दिस अमाउंट इज सेम फॉर एवरीवन, सो दैट अमाउंट इज कॉल्ड यूनिट, जो कि फिक्स है। 1 second इज 1 second फॉर एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिस इज द फिक्स्ड क्वांटिटी एंड वी कॉल इट यूनिट, ठीक है। रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 parts। अब जब हम कभी भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, लेट्स से आपने टेम्परेचर मेजर किया एंड यू से 4 डिग्री सेल्सियस, नाउ यू से 4 डिग्री सेल्सियस, नाउ व्हाट इज 4? अ नंबर and degree Celsius a unit. When you say 3 kg, 3 is a number, kg is a unit. When you say 5 hours, so you can say 5 is a number, hour is a unit. So every single time what you are doing, you are writing a number plus you are writing a unit. That means you are writing 2 things. Whenever you measure anything, you need 2 things. One thing is a number and the other part is the unit. You can see here 4 centimeter, so 4 is number, right, and centimeter is unit. You write 5 centimeter, so 5 would be the number, centimeter is the unit. So there are 2 parts of every measurement. Whenever you measure something, there will be 2 parts. Number 1 is the numerical number and the second one is the unit, any unit. Let's say kg. अब आप जैसे ही सुनेंगे 5 kg, तो आपको समझ में आ जाएगा yes you are talking about the mass. आप बोलेंगे 30 minutes, तो you will be understanding 30 minutes is time. तो minute is the unit of time, so you will be getting it कि भाई जो minute है that is time है, and definitely आपको जो बोला जाएगा that would be कि भाई पता चल जाएगा आपको unit को देखते ही कि हम किस quantity की बात कर रहे हैं। अगर कोई बोलेगा 104 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता चल जाएगा वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर। तो आप यूनिट्स को देखकर क्या करेंगे, टेम्परेचर, टाइम, मास, लेंथ, आप इन सब का पता कर लेंगे। सो इट वुड बी सो मच इजी फॉर यू टू नो अबाउट द क्वांटिटीज इफ यू हैव द मेजरमेंट, एंड डेफिनेटली यू शुड नो दैट अ मेजरमेंट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 things. Number 1 is number, numerical, and number 2 is the unit, right? So this is how you should do it. Now you can write this out. This is important. You can definitely write this out. Now tell me, whenever I will be saying you that I have been studying for 3 hours, so you will be getting the knowledge, yes, she is talking about time. You should know it, right? And if I told you that I have 2 centimeter cloth, I have a strip of 2 centimeter, let's say, so you will be getting to know, you will be definitely getting thing कि भाई that means I will be talking about the length, 2 centimeter, it's a length, right? So that's how you should decide the quantities, ठीक है? So this would be it, and you should know every quantity, every measurement, you can say every measurement is requiring 2 things. Number 1 is a numerical, ठीक है, you can talk about any quantity, ठीक है, you can talk about any measurement of a quantity, so that would be what? That would be a number and it would be a unit. 2 things are necessarily important, right? Now let me tell you all the things, like it would be good अगर आप जब कभी भी किसी भी मेजरमेंट को लिखें तो आप हमेशा एक नंबर को भी लिखें और साथ में कोई यूनिट भी लिखें। जैसे कि अगर आप बोलेंगे आपकी मम्मी को, लेट्स से आपको क्या करना है, आपको 3 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप चाहिए, ठीक है, तो आप मम्मी को बोलोगे मम्मी मुझे 3 का स्ट्रिप चाहिए,
तो मम्मी समझेगी नहीं 3 का क्या स्टेप चाहिए। यू शुड टॉक अबाउट द यूनिट 2। आप 3 सेंटीमीटर बोलेंगे तो मम्मी समझ जाएगी यू आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ। आप अपने फ्रेंड को जाके बोलोगे आज तो मैं 5 पढ़ा, आज तो मैं 5 पढ़ा क्या होता है? अगर आप बोलेंगे आज तो मैं 5 आवर पढ़ा, या फिर आज तो मैं 5 मिनट पढ़ा, या तो आज तो मैं 5 सेकेंड पढ़ा, वैसे 5 सेकेंड पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो यू शुड डेफिनेटली स्टडी एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स डेली, खुद से रिविजन, ठीक है? तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो इट वुड बी लाइक कि अगर आप उसका यूनिट बोलते हैं तो इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ठीक है? बहुत ईजी हो जाता है अगर आप यूनिट नंबर के साथ यूनिट को भी लिखते हैं, अगर आप नंबर के साथ यूनिट को भी बताते हैं, ठीक है? और दूसरों के लिए समझने के लिए भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं, ठीक है? तो दैट वुड बी द थिंग आई वांटेड टू टेल यू। आप इसे फटाफट से नोट कर लो, राइट? इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली you should know the definition of a measurement. This is important. Alright, so this is it. We are definitely ending up the lecture here. Lecture 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड कन्वर्जन, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द नॉट, हम ये सभी पढ़ेंगे, राइट? स्टैंडर्ड सिस्टम्स पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंट यूनिट्स को चूज करेंगे, ठीक है? फिर हम ये भी सीखेंगे कन्वर्जन, और इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, हाउ टू रिमेंबर इट, ये भी मैं आपको बताऊंगी। हम कन्वर्जन भी सीखेंगे एंड वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस, राइट? फिर हम लेक्चर 3 को स्टडी करेंगे, उसमें हम रूलर्स के बारे में स्टडी करेंगे। वी विल बी स्टडिंग अबाउट द प्रिकॉशंस, कैसे करना चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है? ये सब डिस्कस करेंगे। हम डिवाइडर से भी पढ़ेंगे कि भाई डिवाइडर से कैसे करते हैं, कोई भी कर्व लाइन है उसको कैसे मेजर करते हैं, हाउ टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ वायर। फिर हम डिफरेंट के एरियाज को भी डिस्कस करेंगे, राइट? एंड देन वी विल बी वॉल्यूम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर लिक्विड के वॉल्यूम्स को कैसे मेजर करें, उनकी क्या यूनिट्स होती हैं, क्या कन्वर्जन्स होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि कोई इरेगुलर अगर कोई बॉडी होती है, लेट्स से पत्थर, स्टोन होता है ना, उसका कोई शेप नहीं होता, तो हाउ टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज डेंसिटी, ठीक है? देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द लेक्चर 4। हम लोग पूरा फिर मोशन पढ़ेंगे, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, ठीक है? ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया, ठीक है? सारे पॉइंट्स हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेस्ट एंड मोशन, कि भाई क्या होता है, क्यों होता है, क्या वो रिलेटेड टर्म्स होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है? फिर हम लीनियर मोशन डिस्कस करेंगे, क्या होता है लीनियर मोशन, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है? देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रैंडम मोशन, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पीरियोडिक मोशन। बहुत मोशंस होते हैं, मतलब इतने सारे मोशंस होते हैं, ठीक है? फिर हम सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे, फिर हम ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम कंबाइंड मोशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन द लेक्चर 5, ठीक है? फिर हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की बातें करेंगे, भाई क्या होता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़े से ही करेंगे, ठीक है? एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मोशंस एंड सम मोर यूनिट्स, कुछ अलग डिस्कवरी, सिंपल पेंडुलम्स, ऑल दिस इज इन द लेक्चर, ठीक है? वो इसी चैप्टर के अंदर है। फिर कुछ रूल्स भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, देन कुछ क्वेश्चंस एंड देन फिनिश। तो इतना लंबा चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर इट, ठीक है? तो आप फटाफट से अपना क्या करेंगे, पूरा पुराना तो रिवाइजन करते करते चलेंगे, और जो आगे का है उसको भी ध्यान में रख के पढ़ेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, do homework and share it on the Google Classrooms, right? So thank you so much.